A very warm welcome to all the wonderful parents, guardians for joining us today. It's truly a pleasure to have you all here with us. I'm Sunera Sheikh, Assistant Professor in the Department of Food Science and Nutrition, and I'm honored to be your host today for PTA meeting for FY, TY and SYPSC students of Food Science and Nutrition and Human Ecology and Community Science for the academic year 2025 to 2026. Today we gather at Anjuman Islam Begum Jamila Haji Abdul Haq College of Home Science, affiliated with SNDT Women's University. A college accredited with B+ CGPA of 2.74 by NAC is dedicated to equipping students with the knowledge, skills and values for success in the academic and professional journey. Before we begin, let's start this gathering with a few verses of Holy Quran. I invite Ms. Juwairiya Khan to say a few words. Verses. Fortunate to be guided by strong leadership, and it is my great honor to introduce the inspiring leader who heads our institution, Dr. Asya Ahmed Rediwala, our respected in charge principal. Dr. Asya Ahmed Rediwala is not only a dynamic leader but also a mentor and role model to all of us, and she continues to lead with a vision of compassion. It's hard to put in words the depth of her contribution, but I'll try to keep this introduction brief. Dr. Asya Ahmed Rediwala is a highly qualified educator with 26 years of teaching experience in home science and 21 years in administration, holding a BSc, MSc in extension education, a PG diploma in early childhood education, NEP, and a PhD in home science. Her doctoral research focused on intergenerational social mobility amongst minority women in Mumbai. Since 1999, Dr. Asya Ahmed Rediwala has taught at Anjuman Islam Begum Jamila Haji Abdul Haq College of Home Science, affiliated with SNDT Women's University, and became the in-charge principal in 2011. She has also taught postgraduate courses in extension education at SNDT Women's University. Recognized for excellence in teaching, she received the Best Teacher Award from Anjuman Islam. Her academic contribution includes serving as the University Paper Setter, Examination Moderator, Vigilance Squad member, and a CAP coordinator. PhD guideship. She had also led technical session at national conference and served as a jury member for AICTE Lilavati Awards. Dr. Asya Ahmed Rediwala is an executive member of Nutrition Society of India and was honored with the Icon of Inspiration Award at the Metropolitan Conference 2025. Her career exemplifies a strong commitment to academic excellence, women's education, and the field of home science and education. I invite Dr. Asya Ahmed Rediwala to address us today and share her thoughts with the parents. सबसे पहले हम एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद अटेंडेंस रिक्वायरमेंट के बारे में बात होगी, स्टूडेंट्स इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बात होगी, एजुकेशनल एक्सकर्जन जो हमारी कॉलेज लेके जाएगी, हमारे पास दो स्पेशलाइजेशन है, एक फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है और दूसरा ह्यूमन इकोलॉजी कम्युनिटी साइंस है. ओके, जो टीवाई के स्टूडेंट हैं वो उसको बोलते हैं ह्यूमन इकोलॉजी कंज्यूमर सर्विसेज, क्योंकि ये ओल्ड कोर्स है और न्यू कोर्स में नाम थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसको कम्युनिटी साइंस कहा जाता है. और ये जो स्पेशलाइजेशन है मोस्टली फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन बहुत पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वही चाहिए और होता है और वो डाइटिशियन बनते हैं, वो फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब उनको जॉब प्रोफाइल उनका फूड ऑडिटर है और ये सब मतलब फूड के रिलेटेड है. जो HECS स्पेशलाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है, जिसमें जो जॉब रोल्स होते हैं जैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप बनते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं और इवेंट मैनेजर्स बनते हैं. वो खुद का अपना जॉब पहले कॉलेज उनको कोशिश करेगा कि उनको थोड़ा सा रिसर्च करें वो कि क्या क्या अवेलेबल है. कुछ स्टूडेंट को अपने घर के पास लेना होता है, कुछ स्टूडेंट को अपने होम टाउन में लेना होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पिछले स्टूडेंट कोई रत्नागिरी के थे तो उनको वहाँ का चाहिए था, तो हम वो भी अलाउ करते हैं. और अगर स्टूडेंट नहीं डिसाइड कर पाते हैं तो कॉलेज के पास एक पूरी लिस्ट है जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं और वो उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और हम आगे का फॉलोअप करेंगे. तो वो चार हफ्ते स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर में आकर इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. ओके, एक और जैसे रोज उनको जाना है, जैसे कॉलेज वो आते हैं वैसे वहाँ जाना है. और एक हमारी पॉलिसी Human Ecology and Community Science Department. So I would like to shortly tell you what we have done in the past 3 months, and I explain it to you further. The first, what we have done, as you all aware, Principal Ma'am said, HECS department is the creative department. We do a lot of activities, we do a lot of things apart from only one subject. So we are learning textile science and fashion design, we are learning human development, resource management, extension and communication, and as well as FSC. तो ये पांचों मेजर्स को मिला के इनका एक डिपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं HECS.
इस नेचर में इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये सारी जितनी भी फील्ड्स मैंने बताई हैं कि बच्चे इन सारी फील्ड में करके जॉब आगे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जॉब घर से निकल कर ही किया जाए। एज मैम हैज मेंशन्ड, इनको हम एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल सिखा रहे हैं। दे विल बी अ गुड एंटरप्रेन्योर इवन बिफोर गेटिंग देयर डिग्रीज इन देयर हैंड्स। ओके, सो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ व्हाट दे हैव डन इन द लास्ट 3 months only, and there are many more things they need to do. So the first one was पारंपरिक exhibition on the 5th of August. 5 तारीख को अगस्त को हमने F5 तो वैसे ही बहुत सारा HECS स्पेशलाइजेशन के बारे में बता दिया है। अपार्ट फ्रॉम फूड साइंस न्यूट्रिशन हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे करियर पाथ्स हैं बच्चों के लिए, ठीक है। अगर उनको जॉब नहीं भी करनी है तो भी हमारे बच्चे जो है घर बैठे बैठे इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ कमा सकते हैं। उसी की चर्चा हमने क्या किया है, हमारे डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस ने इन कोलैबोरेशन विद एंटरप्रेन्योरशिप सेल, हमारी कॉलेज में एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल है। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं इट मींस बिजनेस, तो हमने क्या किया है, हमारे बच्चों के लिए 15 तारीख से 20 तारीख एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया है, जहां पर बच्चे जो है कैंडल मेकिंग, केक मेकिंग, जो आजकल मोबाइल फोन्स में जो चार्म्स लगते हैं वो बनाना सिखाना उनको। फिर उसके अलावा ये जो फ्लावर्स आपके सामने डिस्प्ले हुए हैं, ये आज उसका सेशन हुआ है जो पाइप क्लीनर से बने हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये बच्चों को हमने सिखाया। उसके बाद कैंडल मेकिंग हो गया है, उसके अलावा मेहंदी आर्ट जो बच्चे घर बैठे बैठे सब कर सकते हैं। तो HECS अगर आप सीखेंगे तो सिर्फ ये सिखाना नहीं, बट ये आगे जाके बच्चे प्रमोट भी कर सकते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप सेल जहाँ पे बच्चे ये सब सीखेंगे, बच्चे नया बिजनेस आइडिया भी लेकर आ सकते हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारा कॉलेज जो है वो श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकुर जी SNDT यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने हम 3 टीचर्स को और प्रिंसिपल मैम ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम गए वहाँ पर यूनिवर्सिटी के, जो 1 हफ्ते का था। और वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेट किया था वाधवानी फाउंडेशन के साथ जो बैंगलोर बेस्ड है। और उन्होंने हमें बताया कि आप अपने बच्चों को स्टार्टअप के लिए, ठीक है, कि नया बिजनेस आइडिया लेकर आने के लिए, जो आजकल बहुत ज्यादा है कि बच्चे अपनी तरफ से कुछ नया कर सकते हैं, तो बिजनेस आइडिया लेकर आने के लिए उन्होंने हमें ट्रेन किया, मुझे, तस्वीर मैम को और असना मैम को, जो दोनों HODs हैं। और हम क्या करें, हम अपने बच्चों को ट्रेन करने वाले हैं कि ये लोग जो है एक नया आइडिया लेकर आए, कुछ नया सोचे, कुछ यूनिक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेकर आए। बिकॉज SNDT जो है नवंबर के एंड में एक महाकुंभ ऑफ आइडियाज का जो है एक कोलैबोरेशन करने वाला है, जहां पर सिर्फ हमारा कॉलेज, जितने भी SNDT एफिलिएटेड कॉलेजेस है, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिनका बहुत अच्छा आइडिया है। ये इंस्पायर हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया, आई होप आप सबने शार्क टैंक इंडिया के कुछ एपिसोड देखे होंगे जहां पर नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। तो उनको भी वही है कि हमारे बच्चे जो है एक नया प्रोडक्ट, कुछ नया आइडिया लेकर आए और वहां जाके वो जो स्टेज प्रोवाइड करेंगे, वहां जाके वो आइडिया पिच इन करें। अगर वो आइडिया उनको बहुत अच्छा लगा तो वो लोग हमारे बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे, उनके साथ कोलैब करेंगे और उनके आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो आगे जाके सिर्फ घर पे ग्रेजुएशन करके ना बैठे, वो इवन मास्टर्स करें और स्टूडेंट उनकी फूड फैक्ट्री भी जाके देखे, विजिट करें और इंटर्नशिप के लिए भी उनको अपॉर्चुनिटीज हो। तो ये सब हम करने की कोशिश करते हैं। और एक कल हमको इनाम मिला सुमेरा पुत्री। Yuva Mahotsav is a youth-centered cultural and literacy festival that celebrates creativity, talent, expression among young students. तो ये फेस्टिवल है जो पहले रीजनल लेवल पे होता है, तो 3-4 स्टेट्स का एक साथ कंपटीशन होता है एंड द कंपटीशन इज बेस्ड ऑन लिटरेसी। तो ऐसे कंपटीशन पोइट्री राइटिंग, एलोक्यूशन होता है, एंड देन देयर आर फाइन आर्ट्स जिसमें स्पॉट फोटोग्राफी है, क्ले मॉडलिंग है, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं। हमारा जो रीजन था वो मुंबई, गुजरात एंड मध्य प्रदेश के रीजन्स के बीच हुआ एंड आई प्राउडली से दैट one of our students, Ume Kulsum from TY FSN, has won 3rd prize for essay competition. और उनको किस चीज़ में आप कैसे हेल्प कर सकते हो, ये आपको सिखाते हैं एनालिसिस। तो मैं पहले आपको एक्टिविटीज दिखाती हूँ, हम एनालिसिस में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, चेंजेस करें। तो ये हम हमारे एनालिसिस स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, उन्हें प्रमोट करिए, आप पार्टिसिपेट करो और सीखो। नेक्स्ट स्लाइड, फिर अब मैं बता दूँ, जैसे मैंने पहले ही बोला, नेचर में आप तो रहते हो, आपके आसपास की जगह कैसी है उसको क्लीन करना। अब मोस्टली आप लोगों ने गंदगी किसकी फैलाई, हमारी, तो उसको क्लीन कौन करेगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बीच है, हम जो कॉलेज में पढ़े हो उनको क्लीन करना, अपने एरिया को क्लीन करना। तो ये सारी एक्टिविटीज हम कॉलेज में कंडक्ट कराते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं कि बीच क्लीनिंग एक्टिविटीज। अगर आपके जो भी बच्चे हैं उन्होंने अगर एनालिसिस में पार्टिसिपेट किया तो आज सुबह ही हमने 7 बजे जून में एक एनालिसिस की एक्टिविटी की थी, बीच क्लीनिंग एक्टिविटी।
तो वो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही मोस्टली आपके बच्चे आएंगे। और पहले मैं ही बता दूँ कि जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे बीच ट्रेनिंग में बहुत सुबह 7 बजे का टाइम था मॉर्निंग का, पॉसिबल नहीं होता है। पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चे फ्रेंड्स which you want to send them they send because फिर अगर वो आते हैं तो यूनिवर्सिटी उनको 10 मार्क्स देती है, तो वो आपके ऊपर ही है। बट हम बहुत ही अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह मुफ्लिस मैं आपकी वालिदैन और वालिदैन को उस्ताद जमील मोमिनीन और मोमिनात जो मुस्लिमीन और मुस्लिमात सबके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे, उम्मत दराज़ फरमाए और अल्लाह ताला इन सारे टीचर का साया हमारे बच्चों को कायम दायम सलामत रखे। ठीक है, ये हमारी खास याद है टीचर से भी और आप वालिदैन का भी हमें हम सब इकट्ठा होते हैं, हम लोग का उनके लिए दुआएं खैर करें और ये इदारा इसी तरीके से बरकरार रहे। और खास इसलिए इस बात की खुशी है कि ये खास हमारे बच्चों के लिए है, बाकी जगहों पे आम तौर पे नहीं रहता है, सब मिक्सअप रहता है। तो एक तरीके की सेफ्टी भी है और उनकी वालिदा की तरह ही सारे टीचर हैं, बहनों की तरह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको सब अल्लाह ताला बहुत से जज़ाए खैर दे, उनकी उम्र दराज खैर फरमाए, उनके इल्म में और इजाफा फरमाए। तो और सारी आपको खास शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि एक इन्हें किसी के लिए जरिया बन सकते हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह। एक और अमानत है जो मैंने प्रॉमिस की थी, तो वो मुझे निभानी है। आफिफा की मदर है यहाँ पर। हाँ, तो आफिफा की अम्मी ने एक प्रपोजल लाए है कि बच्चों को इस महीने में एक बार कुछ मॉरल साइंस दीन के बारे में रहकर कुछ हो, जैसे झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देखते हैं। वो हमेशा अक्सर आते हैं मुझे मिलने के लिए, तो वो हमेशा डिस्कस करते हैं कि बच्चियाँ बहुत झूठ बोलती या कोई स्टाफ के साथ बदतमीजी से बात करती, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। तो हमको उनको दीन की राह में क्या रोशनी इस चीज़ के बारे में हमको देना चाहिए। मॉरल साइंस है, मॉरल एजुकेशन है एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी। वंस इन अ मंथ शी विल कम एंड शी विल टॉक टू द चिल्ड्रन। आपको तो बोला है, तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे, हमारे डिस्कशन से ये निकला था, तो मैंने सोचा मैं इधर रख दूँ। क्या करेंगे उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ ताल्लुक थोड़ा सा कम हो जाता है। एहसास हुआ मुझे इस चीज़ का, तो आसिया मैम से मुलाकात भी थी कि ऐसा अगर हम कुछ करें, अगर आप पेरेंट्स एग्री है तो एग्री हैं आप पेरेंट्स, तो इससे इंशाल्लाह तभी होगा। ग्रुप में मैसेज आ गया जाएगा और बच्चों से आप पूछे कि उन्होंने क्या सीखा है, ये ज़रूर आप सीखे। सॉरी, आप इनसे पूछिए। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बच्चों को भी सीख पहले देते हैं और कभी पेरेंट्स को पहले हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि जो पेरेंट्स दीनदार हैं उनके बच्चे भी दीनदार हों, और इसकी फिक्र हमें ज़्यादा होनी चाहिए। दुनिया के साथ साथ हमें बच्चों की आखिरत की फिक्र करनी है इंशाल्लाह। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी की कि आपने एग्री किया इस बात को। एंड मैंने आई थिंक सेकेंड मीटिंग के 3 साल में कुछ मैं आई हूँ एंड पहली मीटिंग से ये मीटिंग ज़्यादा बेस्ट बहुत। एंड सादिया का आप बहुत